Very good afternoon, boys and girls. Welcome you all to yet another session of CA Foundation Law. We started with the most important chapter of CA Foundation Law, covering 40% around of your syllabus, the highest weighted chapter, जिसका नाम है The Indian Contract Act 1872, right? So before we start with the lecture today, I hope all of you have completed your writing work yesterday. Yes. How many of you have completed the writing work of contract which I have taught yesterday? Just raise your hands. Everyone. Okay, chalo, good. So Sakshi Giri, can you just tell me under which section of the Indian Contract Act the definition of contract is given? Only Sakshi Giri. It is defined in which section? 2A. 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 The word contract is defined under section 2H. Is defined under section 2H of the Indian Contract Act 1872 as contract is an agreement enforceable by law. Contract is an agreement enforceable by law. Sakshi Chaudhary, what is the section for agreement? 2A. It is just 2A. Section 2A. Am I correct? Am I correct? 2A कि 2E है? E है क्या? अच्छा. Section 2E defines the word agreement. Promise or set of promises forming the consideration for each other is called as an agreement. Yes or no? So Devkate, domestic or social agreement, are they enforceable by law? They are not enforceable by law. We saw example of Vishnu. We saw example of Bhale. These are examples. We saw example of Sakshi. These are examples where the agreement are of domestic or social in nature, but these are not enforceable by law. Hence, these agreements cannot be termed as contract. So we come to a conclusion that all contracts are agreements, but all agreements are not contract. Every promise and set of promises forming the consideration for each other is called as agreement. The nextly we saw the definition of promise. Promise is defined in which section, Nirjara? Promise. Tejaswini. 2B. Or there is no section for promise? There is no section for promise. Proposal when accepted becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. There is no section for promise. So what is proposal? Nilgilkar. हाँ. कहाँ है? 2B. Proposal when accepted. तिथे दिले का? Proposal when accepted becomes a promise. Yes, define proposal. Section number 2A. What is given in the definition of proposal? When a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain assent of that another to such an act or subsistence, he is said to make a proposal. He is said to make a proposal. He is said to make a proposal. जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी को कोई प्रपोजल करता है, कोई ऑफर देता है, ये ऑफर कुछ करने के लिए हो सकता है, ये ऑफर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. और ये प्रपोजल इस उद्देश्य से किया जाता है कि जिस व्यक्ति को ये प्रपोजल हम कर रहे हैं, he should give his consent thereto. He should give his consent thereto for same. हाँ या ना? Yes or no? Right? So, in this particular scenario, this is what we mean as a proposal. What is proposal? When one person signifies to another his willingness to do or not or abstain from doing with a view to obtain the assent of that other, with a view to obtain
the assent of that another, such an act or absistence is called as proposal. Yes or no? हाँ या ना? Agree? Yes or no? जैसे एक्ट ऑफ एब्सिस्टेंस कौन सा था, जहां पे भाले तारे को पैसे दे रहा, बोले 5 लाख रुपए तुम कटरीना को प्रपोज मत करो. हाँ या ना? हाँ या ना? Then lastly we understood the definition of word acceptance. Acceptance defined in which section? 2B. Section 2B of the Indian Contract Act 1872 defines the concept of acceptance. When the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent, that is gives his acceptance, then he said to make a acceptance of the proposal. भाले is proposing Katrina, will you marry me? पर बबीता जी बोल रही हाँ भाले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ. That doesn't make a sense because the proposal was made to Katrina, not Babita ji. Yes or no? हाँ या ना? So कल जहां तक हम पहुंचे हैं, yes, कल हम जहां तक पहुंचे हैं, कल जो मैंने आपको सिखाया है, तो कल हम इसमें क्या क्या सीखे बेटा? सबसे पहला क्या होता है? प्रपोजल. क्या होता है बेटा? पहला क्या होता है? एक सेकेंड. Defined in which section? Defined in which section? 2. Proposal. सबसे पहले क्या होता है? Proposal. Two. Proposal when accepted, acceptance. दूसरा स्टेज क्या है इसका? Acceptance. Defined in section 2. Proposal when accepted becomes a promise. Becomes a promise. Promise plus set of promises forming the consideration for each other. Forming the consideration for each other will give rise to an agreement. Will give rise to an agreement. An agreement enforceable by law will be contract. So contract is an agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law के कुछ conditions है जो हम आने वाले दौर में चैप्टर में आगे देखेंगे. तो सबसे पहले contract is an agreement enforceable by law. तो agreement कैसे बनता है? What constitutes a valid agreement? ये तो समझ में आ गया सबको. अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है समझ में आया. कल जो मैंने पढ़ाया इसके बारे में किसी को कुछ डाउट है? Does anyone have any sort of doubt? What did we conclude yesterday? That all contracts are agreement, but all agreement are not contract, because agreement of social and domestic in nature lack the intention of creating a legal relationship. Lack the intention of creating a legal relationship, hence they cannot be enforced by law. Are we okay? Are we okay guys? चलो अब देखो next types of contract. Next study today we have to learn is all about types of contract. Now these types of contract can be classified on the basis of validity, on the basis of validity or enforceability. They can be classified on the basis of formation. They can be classified on the basis of formation. They can be classified on the basis of performance. So contract can be classified into various types on the basis of validity, on the basis of formation, and on the basis of performance. On the basis of validity of the contract or enforceability of an agreement, they are classified as valid contracts, void contracts, voidable contracts and illegal agreements. क्या क्या बोलते हैं वैसे? Valid contracts, void contract, voidable contract and illegal agreement. And illegal agreement. On the basis of formation, they can be classified as express contract, implied contract, quasi contract and
e-commerce contract. On the basis of performance, they have two types. One is executed, second is executory contract. On the basis of performance, they can be classified as executed contract or executory contract. Executory contract again has two headings, that is unilateral contract and bilateral contract. This is just a brief overview or chart of all types of contract that we are going to discuss today. Today I will be completing all the types in one go in today's lecture. Are we ready? चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, यहां पे एक और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, वो है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है नहीं है, उसके बेसिस पे, उसकी एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे हम उसका टाइप डिसाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या बोला है वहां पे डेफिनेशन? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ containing all the essentials of a valid contract are termed as valid contract. एक ऐसा अग्रीमेंट, यूनिट नंबर 3 हम देखेंगे, essentials of a valid contract. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या essentials है. हर वो अग्रीमेंट, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे essentials को फुलफिल करता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? Valid contract. So what is valid contract? How do you define valid contract? An agreement enforceable by law fulfilling all the requirements of a valid contract, fulfilling all the essentials, fulfilling all the requirements of the valid contract are called as valid contract. Essentials क्या क्या है हम यूनिट नंबर 3 में डिटेल में देखने वाले हैं. यूनिट नंबर 3 में जब हम जाएंगे तब हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या essentials है. कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो एनफोर्स होने के लिए कुछ इसेंशियल्स उसे फुलफिल करने पड़ते हैं. वो इसेंशियल्स फुलफिल करेंगे, वो कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बेटा, दे आर कंपल्सरीली एनफोर्सिएबल बाय लॉ. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में गणेश वांट्स टू सेल हिज बाइक टू विष्णु for rupees 20,000 and Vishnu is ready to buy his bike for 20,000. They both have made a promise to each other. They both have made promise to each other. Hence there is an agreement. Agreement is enforceable by law because both the parties are intending to create a legal relationship. कल को अगर गणेश गाड़ी बेचने के बाद विष्णु पैसे नहीं देता गणेश को, can Ganesh enforce this contract in the law? Yes. Why no? एक वैलिड एग्रीमेंट के अंतर्गत गणेश ने अपनी गाड़ी जो है वो विष्णु को दी है, जैसा तय एग्रीमेंट में, वैलिड एग्रीमेंट में तय हुआ था. अब उस तय वैलिड एग्रीमेंट के मुताबिक व्हाट इज विष्णु's रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू पे रुपीज 20,000. नाउ विष्णु हैज डिनाइंग द पेमेंट ऑफ 20,000. इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ऑल वैलिड एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ऑल वैलिड एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ. दैट मीन्स in case Vishnu does not pay money to Ganesh, Ganesh has all the authority to enforce this contract and take him to the court of law for justice. Valid contract are enforceable by law. Valid contract are enforceable by law. आया ना? समझे? चलो नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी जैसे मैंने कहा कि गणेश और विष्णु के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या तुम्हें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लगता है? क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लगता है? इसमें कुछ आपत्तिजनक है क्या? नहीं, इट्स अ नॉर्मल वैलिड एग्रीमेंट, सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 मिनट में एग्जाम्पल देना है, समझ लेना कि वैलिड एग्रीमेंट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड क्या है. जैसे कि लेट से हमारा भाले जो है, हमारा गणेश, विष्णु जो है, विष्णु भाले को अपॉइंट करता है एज हिज प्रोफेशनल किलर, और वो विष्णु 1 लाख रुपए की सुपारी देता है भाले को, बोला दिनेश सर को ठोक दे.
बहुत होमवर्क दे रहे हैं, इन्हों कोई सुन रहे नहीं, इन्हों बहुत होमवर्क दे रहे, तुम एक काम करो। नाउ देयर इज एन अग्रीमेंट, एक सेकंड सुनो मेरी बात, देयर इज एन अग्रीमेंट। अब इस अग्रीमेंट के अंतर्गत विष्णु इज प्रॉमिसिंग टू पे रुपीज 1 लाख टू भाले एंड भाले हैज प्रॉमिस टू टेक माय सुपारी। ओके, सुपारी, हाँ वो घर पे रहे तो वो सुपारी नहीं, डिस्काउंट वाली सुपारी। ना भाले गैंगस्टर हैज टेकन सुपारी टू किल मी। मान लो एक दिन मैं ऐसे ही क्लास पढ़ा के जा रहा था, भाले आया गाड़ी पे और उतरते झुक 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 बंदूक निकला, डिस्का मुझे मार दिया, मैं मर गया, चला गया, भाग गया अब यहां से। और फिर भाले जा रहा है विष्णु के पास, बोला गेम ओवर। बोले अब पैसे, काम तमाम कर दिया मैंने, पैसा चाहिए मेरे को। विष्णु बोला कई के पैसे, कौन से पैसे, मैंने क्या बोला मर्डर करने को, ना 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 मैंने कुछ नहीं बोला। यू आर ब्रेकिंग द अग्रीमेंट, यू आर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वेट आई विल टेक इट द कोर्ट। जज साहब मैंने खून किया है, गोलियां मारी है मैंने सर को, और ये आदमी ने बोला था 1 लाख रुपए दूंगा लेकिन देना ही रही है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मुझे इंसाफ चाहिए। पहले इंसाफ तो इसके साथ करेंगे, इसे फांसी पे लटकाएंगे, फिर बोलेंगे हो गया इंसाफ। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया अग्रीमेंट का, डू यू थिंक इट्स अ वैलिड अग्रीमेंट? कैन इट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कैन इट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कैन इट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा जब मैं आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा कि कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल, कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल। नाउ व्हाटएवर consideration should be lawful and object of the contract should also be lawful. Now what is the objective of the contract between Isnu and Bhale? It is of killing someone, it is of killing someone, it is of killing me, right? Do you think such kind of agreements are lawful? Are such kind of agreement lawful? No. So इसका मतलब क्या है, इनका ये जो agreement है, it does not fulfill the essentials of valid contract, it does not fulfill the essentials of a valid contract। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं, ये क्या है, एक इलीगल अग्रीमेंट है। ये क्या है बेटा, एक इलीगल अग्रीमेंट है। अब मुझे बोलो, गणेश अपनी गाड़ी विष्णु को बेचना चाहता है, विष्णु उसके बदले में 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है। क्या हमारे यहां पर सेकेंड हैंड गाड़ी बेचना क्या कानूनी जुर्म है क्या? नहीं। Is there anything wrong in this particular agreement? So undoubtedly this particular example will fulfill all the conditions of essentials of a valid agreement or valid contract। इसीलिए ये agreement क्या है, एक valid contract है। Are you getting my point? Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? Hence valid contract is an agreement enforceable by law which fulfills all the essentials of a valid contract। Are we okay with the definition? Are we okay with the examples? है ना? चलो अब सेकंड, void contract। सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन नंबर कोट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन नंबर 2J, as per section 2J of the Indian Contract Act 1872, void contract is a contract which ceases to be enforceable by law or becomes void when it ceases to be enforceable। क्या है डेफिनेशन? A contract which ceases to be enforceable by law, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। क्या समझे? ceases इतना समझे और कुछ नहीं समझे। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। void contracts are one which are not valid। एक बात तो पक्की है, एक चीज समझ चुकी होगी, सेकंड लाइन पढ़ते हैं कि void contract वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये सारे क्या होते हैं, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट फुलफिल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को मीट अप नहीं करते। एट द स्टार्ट दिस इज वैलिड एंड एट द टाइम ऑफ एनफोर्सेबलेशन execution it becomes invalid। तो डेफिनेशन क्या है पढ़ो, a contract ceases to be enforceable by law
becomes void when it ceases to be enforceable. Becomes void when it ceases to be enforceable. इस डेफिनेशन का ये कहना है कि जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कभी भी दोनों व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। लेकिन जब उसे एनफोर्स करने जाते हैं, जब उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो वो अपने आप कोई एक अनवांटेड रीजन की वजह से इनवैलिड हो जाता है, कोई एक रीजन की वजह से इनवैलिड हो जाता है। यानी स्टार्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बतौर शुरू होता है, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज या घटना हो जाती है, कोई ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं जिसके वजह से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक इनवैलिड या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझने की कोशिश करो क्या है ऐसा सिचुएशन। एग्जाम्पल, लेट्स से बाबूराव है, यू नो बाबूराव की सबसे पसंदीदा चीज क्या है? बाबूराव की सबसे पसंदीदा चीज अल्कोहल, दारू, राइट? अब ये है राम, राम श्याम अलग है ना, फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी। अब राजू है क्या? राम श्याम ने, सॉरी राजू, ओ बरोबर, ए राजू। तो अब देखो राजू और बाबूराव, देखो राजू और बाबूराव, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना है। अभी के लिए राजू ये समझ लो ये गुजरात में अहमदाबाद में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? गुजरात के अहमदाबाद में। अब इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है जहां पर राजू ने प्रॉमिस किया है कि ही विल सप्लाई हिम अल्कोहल, ही विल सप्लाई हिम अल्कोहल एंड बाबूराव हैज प्रॉमिस टू पे हिम रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की दारू, राइट? वो देखते हैं ना हेरा फेरी में जब उसकी लॉटरी थे, यार ऊपर टंकी में भर दे रहे, मस्त नल खोल के लेने का आता है। सो अभी बाबूराव जी ने राजू के साथ अग्रीमेंट किया है, वेरी सेड कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए के बदले में तुम मुझे 1 लाख रुपए की शराब यानी अल्कोहल दे देना। यह अग्रीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को ये दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ जहां पर बाबूराव ने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें 1 लाख रुपए देंगे राजू को, और राजू ने प्रॉमिस किया कि 1 लाख रुपए की शराब वो उसे सप्लाई करेंगे। 1 जनवरी को जब यह अग्रीमेंट हुआ, यह अग्रीमेंट एक वैलिड अग्रीमेंट था, यानी गुजरात सरकार ने किसी भी तरह की बंदी शराब पर उस वक्त नहीं लगाई, तो इस हिसाब से अग्रीमेंट क्या हुआ? वैलिड। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाबूराव के बीच में और राजू के बीच में, जहां 1 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तय हुआ था कि दारू की डिलीवरी ये 30 जनवरी 2021 को राजू जो है वो बाबूराव को करेगा। कब? 30 जनवरी 2021। लेकिन मीनवाइल 15 जनवरी 2021 को गुजरात गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन के अंदर उन्होंने शराब को परमानेंटली बैन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ, कब एंटर हुआ बेटा? 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021। शराब कब पहुंचानी थी? 30 जनवरी 2021। मिड ऑफ द मंथ 15 तारीख को, 15 जनवरी 2021 को शराब की बंदी सरकार ने ला ली। तब मुझे बोलो, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कब? 1 तारीख को, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? क्या तब एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था?
इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना या इस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करने की तारीख क्या थी? 30 तारीख। इससे पहले कि उसे एनफोर्स करते, इससे पहले कि उसे इंप्लीमेंट करते, इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इनवैलिड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इनवैलिड। यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। अब शराब पर बंदी सरकार ने कब डाल दी? 15 जनवरी। कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कब करना है? 30 जनवरी। तो 15 तारीख के बाद अगर राजू बाबूराव को अगर शराब बेचता है, विल इट बी अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव और अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव? अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव। बीइंग एन अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, it won't fulfill the conditions of a valid contract, hence it will be termed as invalid. So अब हमें क्या समझ में आ रहा है? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो void कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, it is compulsorily a invalid contract. Invalid कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो essentials of valid contract के conditions को meet नहीं करता। जो essentials of valid contract के सारे condition meet करता है उसे हम क्या कहते हैं? valid contract। और जो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं करता, बहुत सारे कंडीशंस है, उनमें से अगर एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी। सीजेस का मतलब होता है एंड्स। सीजेस का मतलब क्या होता है? एंड्स। सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एंड्स टू बी एनफोर्सेबल when it ceases to be enforceable। यानी ये एनफोर्स कब होना है? 30 तारीख को। 30 तारीख को, इससे पहले कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करें, ये एनफोर्स होने से पहले ही अनएनफोर्सेबल हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक वैलिड अग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था। वैलिड अग्रीमेंट हुआ था क्योंकि 1 तारीख को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब अग्रीमेंट क्या था? वैलिड था। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्या? हाँ। लेकिन एनफोर्सेबिलिटी जब 30 तारीख को उसकी थी तब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहा? तब तक ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया जाता है एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसको एनफोर्स करने से पहले ही अगर वो इनवैलिड हो जाता है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वी कॉल इट एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आर यू क्लियर विद द डेफिनेशन? आर वी क्लियर विद द डेफिनेशन? आर वी क्लियर विद द डेफिनेशन? सो एक बात पक्की, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब क्या होते हैं? वॉइड। All invalid contract are void. A contract not fulfilling any of the conditions of essentials of valid contract are void, and a contract fulfilling all the conditions of essentials of valid contract are valid. अभी ओके? समझ में आया? Void agreement is not void ab initio. क्या बोल रहे हैं यहां पर? Void agreement is not void ab initio. क्या बोला है वर्ड? Void ab initio। इनिशियो का मतलब होता है इनिशियल। क्या मतलब होता है? इनिशियल। void ab initial। void ab initio मतलब these are not void at the initial stage। 1 तारीख को जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या वो void था? क्या वो void था? क्या वो void था? जब 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो वॉइड नहीं था। अब मुझे बोलो, विष्णु के बीच में और भाले के बीच में मैंने एक एग्जांपल दिया अभी सुपारी का, मेरे खून करने का। क्या डे 1 से ही एक इलीगल एग्रीमेंट है? क्या एंट्री हुई उस वक्त से ही एक इलीगल एग्रीमेंट है? सो ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एब इनिशियो। ये क्या है? वॉइड एब इनिशियो। दिस इज एग्जांपल ऑफ वॉइड एब इनिशियो। जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही इनवैलिड है, जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही इनवैलिड है, वो क्या है बेटा? वॉइड एब इनिशियो। लेकिन अभी बाबूराव वाला और राजू का एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 तारीख को, तब शराब बेचना खरीदना यह कानूनी चालू था, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्या था बेटा? वैलिड। सो कैन आई से void contract are valid at the initial stage? yes or no? तो क्या वो void ab initio हुए क्या? नहीं। void ab initio यानी जो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत से ही void है, इनवैलिड है, जो शुरुआत से ही इनवैलिड है, उसे हम कहते हैं
void ab initio. So can I say illegal agreements are void ab initio? Yes or no? Can I say illegal agreement are void ab initio? विष्णु और भाले के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, जो शुरुआत से ही एक गलत कारण के लिए, जो शुरुआत से ही इनवैलिड है, तो ये क्या हुआ? void ab initio. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में वैलिड है, लेकिन जब उसे एनफोर्स करने जाते हैं तब इनवैलिड हो जाते हैं कोई वजह से, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो नहीं होते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर इनवैलिड बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वॉइड एब इनिशियो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सहमत है मेरे से? चलो. A collateral contract to a void contract may or may not be valid. Now understand. हमारे एग्जाम्पल में विष्णु और भाले. Now what is a collateral contract? A subcontract to the main contract is called as a collateral contract. क्या बोला मैं? अ सब कॉन्ट्रैक्ट टू अ कोलैटरल, अ सब कॉन्ट्रैक्ट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहते हैं इसे? कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट आर कंपल्सरीली वॉइड. क्या बोला मैं? कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट आर कंपल्सरीली वॉइड. जैसे विष्णु और भाले के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, जहां विष्णु हैज प्रॉमिस टू पे हिम 1 लाख, दिनेश सर का मर्डर, राइट? नाउ दिस इज अ इलीगल अग्रीमेंट विच इज void ab initio. It is void ab initio because it is invalid from the start itself. है ना? Now let's take example of a collateral contract. There is a contract between Bhale and Soham. There is a contract between Bhale and Soham. Bhale has promised to pay 5,000 rupees to Daima, and Daima has promised to provide him bike. This bike he was going to use for my murder. ये जो बाइक है ये वो मेरे मर्डर के लिए इस्तेमाल करने वाला था, उसकी जो नीले कलर की जो बाइक है वो. तो तय अग्रीमेंट के हिसाब से 5,000 रुपए दाइमा को भाले ने दिया, सॉरी भाले ने दाइमा को दिए 5,000 रुपए, और दाइमा ने तय अग्रीमेंट के मुताबिक अपनी गाड़ी जो है भाले को दे दी. दाइमा इज नोवेयर अवेयर ऑफ द इंटेंशंस ऑफ भाले की ऐसा भी कुछ करने वाला है. उसको पता भी नहीं कि इतना बड़ा डॉन है, छोटा डॉन. मैं हूं कौन? छोटा डॉन. मैं हूं कौन? छोटा डॉन. वो देखा है पार्टनर पिक्चर, देखा है आपने? छोटा डॉन. तो अब सुनो मेरे बात. दाइमा इज नोवेयर अवेयर कि भाले की मंशा क्या है, इसके इंटेंशंस क्या है, और बाद में पता चलता है कि यही गाड़ी का इस्तेमाल करके भाले ने मेरा मर्डर कर दिया. अब इट इज अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. है ना? मेन कॉन्ट्रैक्ट का एक सब कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट का एक कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है. क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट एक इलीगल अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कंपल्सरीली वॉइड कंसीडर किया जाएगा. कंपल्सरीली क्या कंसीडर किया जाएगा? वॉइड. सो क्या समझे हम? अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट आर कंपल्सरी वॉइड. समझे? इसका मतलब मेरा मर्डर करने के बाद भाले गाड़ी को हाईवे पे छोड़कर चला गया, और बाद में हाईवे से पुलिस ने गाड़ी उठा ली. दाइमा जी बोले मैंने तो किराए पे दी थी, मुझे किराया भी नहीं मिला, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे गाड़ी भी दो, मुझे किराया भी दो. ना उसको गाड़ी मिलेगी ना उसको किराया मिलेगा. बिकॉज कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू अ इलीगल अग्रीमेंट आर कंपल्सरीली void. Now come to our
प्रीवियस एग्जाम्पल दारू शराब वाला। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एक वैलिड एग्रीमेंट था। लेटर ऑन एनफोर्स करने के वक्त वो वॉइड हो गया, वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की। एक कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जहां देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन राजू एंड श्याम, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन राजू एंड श्याम। सो अब जो श्याम और राजू है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि राजू जो है श्याम को 20,000 रुपए देगा और इस 20,000 के बदले में बॉटल जो है, बॉटल्स, ग्लास की बॉटल, हाँ जस्ट ग्लास बॉटल्स, ग्लास बॉटल जिसमें शराब भर के बाबूराव को देनी है, वो खाली बॉटल जो है श्याम जो है राजू को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि दारू बंदी हो, अब इस हिसाब से उसने क्या किया, 10 तारीख को सारी बॉटल जो है, कितने तारीख को? 10 जनवरी 2021, 10 जनवरी 2021 को खाली बॉटल जो है 20,000 रुपए के राजू को भेज दिए। कितने तारीख को बेटा? 10 जनवरी 2021। कब? 2 जनवरी 2021। बाद में दारूबंदी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो गया, कैंसिल हो गया। अब राजू ये बोल रहा है शाम को, जा मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। तो बोले क्यों? मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल? नो, इट इज नॉट इलीगल। व्हेन इट वाज एंटर्ड इट वाज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्स करते वक्त वो वॉइड हो गया, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे सिनारियो में बॉटल लेने के बाद अगर राजू बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो फिर शाम क्या करेगा? राजू को कोर्ट में लेके जाएगा। कोर्ट में ले जाने के बाद राजू क्या बोलेगा कि सर शराब का धंधा एक इलीगल धंधा हो गया है, इलीगल धंधा होने की वजह से मेरे कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड हो गए, इसीलिए मेरा और शाम का कॉन्ट्रैक्ट ये क्या हो गया? एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कोर्ट बोलती है ऐसा नहीं, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था बाबूराव के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड। लेकिन जब एनफोर्स करने के बाद है, बाद में वो क्या हुआ? बाद में वो क्या हुआ? इनवैलिड हुआ। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इन द गिवन सिचुएशन दिस कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, will be considered as valid. Collateral contract to a void contract. Collateral contract to a void contract may be valid, may be void. अभी इस वाले एग्जाम्पल में शाम की कुछ गलती है क्या? तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। और इसके मुताबिक 20,000 रुपए राजू को कंपलसरी जो है बेटा किसे देने पड़ेंगे? शाम को, सॉरी शाम को, राइट। लेट्स से देयर इज वन मोर कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज वन मोर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन Raju and Lakhan. Raju and Lakhan, where Raju had promised to pay rupees 10,000 to Lakhan, and Lakhan had promised to transport. Lakhan had promised to transport the entire consignment of alcohol from Gujarat to Mumbai, where Babu Rao is staying. अब मुझे बोलो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। अब शराब प्रोड्यूस होगी क्या? नहीं। जब शराब प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या? नहीं होगा। अब 30 तारीख को जब शराब ट्रांसपोर्ट करने का बात आया तो फिर राजू ने लखन को बोला कि शराब पे बैन आ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, तो ये भाड़ा कैंसिल होता है। लखन बोलता है ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा माल पहुंचा के रहूंगा। अब तुम्हें माल भेजना है नहीं भेजना है वो तुम्हारी इच्छा, नहीं भेजना है तो भी मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो मेरे भाड़े के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे।
कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में देखा जाता है। इस इंस्टेंस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। वॉइड होने के बाद जो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। नाउ दिस विल डिपेंड ऑन केस टू केस, इसलिए मैंने दोनों केस ले लिया। अब मुझे बोलो, जब गाड़ी लगाई नहीं, गाड़ी में ट्रांसपोर्ट ही कुछ किया नहीं, तो भाड़ा बनता है क्या? पहले वाले केस में शाम ने बोतल पहुंचा दी थी, माल दे दिया था, तो उसका पैसा मांगना लाजमी है, या ना? या ना? लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ही नहीं, कंसाइनमेंट ही नहीं, कुछ नहीं, खाली कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे तुम बोल रहे मुझे पैसे तो देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो क्या बोलेगा कोर्ट, भाड़े के पैसे तो या मत दो, मत दो। So this contract will be considered to be void. This contract can be considered as void. So can I say a collateral contract to a void agreement may be valid or may be void? हाँ या ना? दोनों में सब कॉन्ट्रैक्ट थे, एक शाम वाला, एक लखन वाला। लखन वाले केस में हमने क्या देखा, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू void agreement is valid. कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू void agreement is valid. लेकिन लखन वाले एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू void agreement is void. एक केस में void है, एक केस में valid है। So collateral contract or sub contract to a void agreement may be valid or may be void, but a collateral contract to a illegal agreement is always void. Is always void. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes or no? Next example. Next type, voidable contract. अगला क्या है? voidable contract. So after understanding the definition of valid contract, after understanding the definition of void contract, let's move on to the next heading, that is voidable contract. It is called as voidable contract. Voidable contract is defined under section 2I of the Indian Contract Act 1872 as an agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties. At the option of one or more parties thereto, but not at the options of other, is a voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of others, is called as a voidable contract. Read the definition again. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is called as a voidable contract. Void means invalid. Void का मतलब क्या होता है? Invalid. Able means power or ability to cancel the contract. So voidable contracts specifically are those contracts where one of the party, which is an aggrieved party in the contract, has the power to cancel the contract. Has the power to cancel the contract. Has the ability to cancel the contract. Hence these contracts are called as voidable contract. Voidable contract are cancelable at the option of the party whose free consent is so caused. Whose free consent is so caused. Right? And when can a contract be called as a voidable contract? पहले थोड़ा रीडिंग करेंगे, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूं. When free consent is absent, when free consent is absent in a contract, then the contract becomes voidable at the option of the party whose free consent is so caused. Free consent can be caused under the case of coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. These are the 5 different situations under which you can say in a contract there is no free consent, and if there is no free consent in the contract is voidable. Voidable at the option of the party whose free consent is so caused. Easy है? समझ गया? सब समझ गया? ये समझाना पड़ेगा, बहुत समझाना है, चिंता मत करो. चलो आ जाओ.
अब हमारे क्लास में एक डाकू है, एक गैंगस्टर है जिसका नाम है भाले, जिसका नाम है भाले, राइट। अव्वल नंबर का डाकू है, चेहरे पे मत जाओ इसके। तो अब भाले एक अव्वल नंबर का गैंगस्टर है, उसे पता है बेचारी हमारी निर्जरा बहुत इमोशनली है और उसको मम्मी की याद है तो इमीडिएट रोने लगती है वो, तो वो यहाँ जिंतुर में रहती है। ध्यान दो, हाँ देखो इस तरह के एग्जाम्पल बनाना है ना, हंसी मजाक रहेगा तो कंसेप्ट समझ में आता है। अब दो व्यक्ति है इस कॉन्ट्रैक्ट में, एक है भाले और दूसरा है निर्जरा। लेट्स से ये घर बेंसूरी निवास है, निर्जरा के पापा मम्मी का ये घर है। और लेट्स से ये घर जो है निर्जरा के नाम पर है, निर्जरा के नाम पर है। ये बात भाले को पता चल गई कि ये घर निर्जरा के नाम पे है। तो उसने पता किया कि जिंतुर के एकदम चौक में घर है, इस घर की आज मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए है। कितनी है? 1 करोड़। उसे ये बात भी मालूम है कि निर्जरा थोड़ा इमोशनली वीक है, अगर मैं उसे डराऊं धमकाऊं तो मुझे वो घर दे सकती है। तो भाले ने सीधा क्लास पर आया, बंदूक निकाल के बोला निर्जरा हैंड्स अप। बोले क्या हुआ? बोले वो तुम्हारा घर है ना? बोले हाँ, वो मेरे नाम पे कर दो। नहीं बोले मुझे घर नहीं बेचना। करते हो नहीं मेरे नाम पे घर? तो बोले नहीं करूंगी मैं, तुम्हें यही मार दूंगा, तुम्हारे पापा मम्मी को किडनैप कर लूंगा, सबको किडनैप कर लूंगा, तुम्हारे भाई को किडनैप कर लूंगा, पापा को किडनैप कर लूंगा, मम्मी को किडनैप कर लूंगा। मम्मी का नाम सुनते निर्जरा रोने लगी। नको, तुम मुझे मार दो लेकिन पापा मम्मी को किडनैप मत करो। तुम मुझे मार दो लेकिन पापा मम्मी को किडनैप मत करो। भाले को समझ गया कि निर्जरा अपने पापा मम्मी से इतना प्यार करती है, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा मम्मी को किडनैप नहीं करूं तो तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, सुननी होगी। वो बोलेंगे तुम जो बोलोगे वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज मेरे पापा मम्मी को किडनैप मत करो। अब जो है भाले बेचारी निर्जरा पर कोर्शन अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? कोर्शन। जब कभी भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर फिजिकल या मेंटल प्रेशर लाने की कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं कोर्शन। मेरी तरफ देखो मत, मैं होमवर्क देता मतलब क्या मेंटल प्रेशर लाता क्या? जब कभी भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर फिजिकल या मेंटल प्रेशर लाने की कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं कोर्शन। क्या कहते हैं हम? कोर्शन। क्या कहते हैं हम? कोर्शन। क्या कहते हैं हम? कोर्शन। अब पूरा सीन तो तुमको समझ गया। सीन ऐसा है कि निर्जरा का घर भाले चाहता है और भाले ने धमकी दी है कि ये घर तुम्हें मुझे बेचना होगा। निर्जरा मना कर रही थी तो वो बोला कि मैं तुम्हारे पापा मम्मी को किडनैप कर लेता हूं, फिर तुम तुम्हारा देख लेना क्या करते तो देख लो। तो बोले नको ऐसा नको करो, मैं तुमको घर बेच देती। सो देयर इज एन अग्रीमेंट वेयर भाले सेड आई विल पे यू 10 लाख रुपीज, आई विल पे यू 10 लाख रुपीज, और 10 लाख रुपए के बदले में यू सेल मी दिस हाउस, यू सेल मी दिस हाउस फॉर 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए में यह घर आप मुझे बेच दो। क्योंकि निर्जरा को धमकी दी गई है। देर इज कोर्शन अप्लाइड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बोलो, क्या अपने फ्री कंसेंट से निर्जरा यह कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? इज देयर फ्री कंसेंट? देर इज कोर्शन, देर इज कोर्शन। वेनेवर देर इज कोर्शन देर इज नो फ्री कंसेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या ये खुद की इच्छा से निर्जरा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्या? जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब कभी भी, समझ में आ रहा है क्या धीरे धीरे? जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति की इच्छा के विपरीत जाकर, यानी बिना इच्छा के कोई कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती करवाया जाता है, ऐसा जबरदस्ती किराया हुआ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
voidable contract. क्या होता है? voidable contract. Now, is there free consent of Nirjara? This consent for the contract which Nirjara has given, where she has promised to sell her house for 10 lakh rupees to Bhale, is only because of the reason Bhale has applied coercion in the contract. भाले ने धमकी दी है. भाले अगर धमकी नहीं देता तो क्या निर्जरा अपना घर खुद के खुशी से 10 लाख रुपए में भाले को बेचती? क्या एक बार भी नहीं बेचती. वो उसके पापा मम्मी का घर है जो उसे दिया गया है, तो एक बार भी अपना घर नहीं बेचती, क्योंकि भाले डरा रहा है, धमका रहा है, बंदूक दिखा रहा है, फिर बोल रहा है मैं पापा मम्मी को किडनैप कर लूंगा. फिर बेचारी निर्जरा डर गई. बोले अपना तो ठीक है, लेकिन पापा मम्मी को किडनैप करेंगे तो कैसे चलेगा ना. फिर निर्जरा रोने लगी, तो उसको समझ में नहीं आया. फिर वो बोली एक काम करते हैं, जाने दो, मैं घर बेचने के लिए तैयार हूं. तो वो भाले को बोलती है कि ठीक है, ये घर जो है 10 लाख रुपए में तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं. अब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्शन है. जहां कोर्शन होता है वहां फ्री कंसेंट नहीं होता, और जहां फ्री कंसेंट नहीं होता है बच्चों, वहां पर क्या होता है? voidable contract. A voidable contract is voidable, or you can say can be turned void only at the option of one or more party whose free consent is so caused, and not the option of other, is called as a voidable contract. इसी डर से कि भाले कहीं कुछ करना ले, इसलिए चुपचाप से ये घर निर्जरा ने भाले के नाम पे कर दिया, और भाले ने बाय अकाउंट 10 लाख रुपए निर्जरा को दे दिए. और रजिस्ट्री होने के बाद फिर से धमकी भी दे रखी. ये जो व्यवहार हुआ है, आपको ऐसे ही बोलना है कि तुम्हें पैसे का प्रॉब्लम था इसलिए तुमने घर बेचा है. किसी को भी कुछ बोलने की अगर कोशिश की, पुलिस को अगर खबर करने की कोशिश की, तो मैं फिर से तुम्हारे पापा मम्मी को किडनैप कर लूंगा, ऐसे बोल के रखा है. भाले गैंगस्टर. तो अब ऐसे सिनारियों में निर्जरा और डर गई. निर्जरा को यही डर सता रहा था, जाने तो घर का क्या है, घर तो मैं मेरे मेहनत से सीए बनी हूं, मैं वापस मेहनत करूंगी, घर वापस बना लूंगी, लेकिन मेरे पापा मम्मी को किडनैप कर लिया, भाले ने लेकर गया, किडनैप कर लिया, तो फिर मेरे पापा मम्मी कहां से आएंगे. फिर बोले नको, ये रिश्त नको. तो निर्जरा चुप रहती है. निर्जरा चुप रहती है. आप मजाक छोड़ो, थोड़ा ध्यान की तरफ. निर्जरा चुप रहती है, कुछ भी नहीं करती, ना कंप्लेन करती पुलिस में, कुछ नहीं करती. इस बात को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, कहीं कुछ किसी को कानो कान खबर नहीं. भाले अब उस घर का मालिक बन चुका है. इस बात को हो गए 2 साल. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या दिया है वहां पर एग्जाम्पल, सॉरी डेफिनेशन में क्या दिया, पढ़ो. डेफिनेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब आपके हिसाब से क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अरे बाबा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके हिसाब से? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, है ना, है कि नहीं? डेफिनेशन क्या कहता है? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन of one or more parties thereto, but not at the option of the other, is called as a voidable contract. voidable, इस कॉन्ट्रैक्ट को void करने की एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टियों में से एक पार्टी के पास होती है. वो एक पार्टी जिसके पास पावर है, जिसके पास एबिलिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट को void करने की, वो पावर किसके पास है? निर्जरा के पास. अब मुझे बोलो, फ्री कंसेंट किसकी नहीं है? निर्जरा की या भाले की? भाले तो धमकी दे रहा है, उसकी तो कंसेंट है ही, लेकिन निर्जरा की फ्री कंसेंट है क्या? नहीं, क्योंकि निर्जरा को कोर्शन अप्लाई किया जा रहा है, निर्जरा को धमकी दी जा रही है. हाँ या ना? तो उसकी हाँ है कि इसमें नहीं है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है,
इसे वॉइड, हमारा जो किधर गया कॉन्ट्रैक्ट घर का, हाँ किधर गया, हाँ हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है घर का, ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए पहल निर्जरा ने लेनी होगी। एबिलिटी किसके पास है? निर्जरा के पास। निर्जरा अगर चुप रहती है, निर्जरा अगर चुप रहती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या रहेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। निर्जरा ने सोचा अभी ये धमकी दे रहा है, अभी तो ये सामने है, अभी के लिए घर दे देते हूं, बाद में पापा मम्मी को एक सेफ जगह पे नाना के यहाँ नानी के यहाँ भेज दूंगी, फिर बाद में मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, चुप अभी के लिए रिस्क नको। तो अभी निर्जरा ने क्या किया? चुपचाप घर के कागज लाए, 10 लाख रुपए भाले से ले लिए और 10 लाख रुपए में दस्तखत करके अपना घर उसे बेच दिया। फिर बाद में अपने भाई को इन्फॉर्म किया, भाई ने उसके पापा मम्मी को गाड़ी में बैठाकर उसके नाना नानी के यहाँ चले गए, वहां पे उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेके सेफ गार्ड में आ गया। अब निर्जरा जाती है पुलिस थाने में, पुलिस थाने में जाके लिखाती है रिपोर्ट, रिपोर्ट में कहती है भाले गैंगस्टर आया था, मुझे धमकी दिया था, 10 लाख में मेरा घर लिया था, अब मुझे इंसाफ चाहिए, अब मुझे इंसाफ चाहिए। नॉर्मल घर के जैसे 10 लाख रुपए इनको मिले हैं और नॉर्मल जैसे रजिस्ट्री करते हैं वैसे रजिस्ट्री करके इनके नाम पे घर हो गया है। अब घर का मालिक कौन है? भाले। घर का मालिक कौन है? भाले। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अपना जो वॉइड करने का जो पावर है, आगे देख पुलिस, अपना जो वॉइड करने का पावर है, एक सेकेंड सुनो, अपना जो वॉइड करने का जो पावर है वो निर्जरा ने एक्सरसाइज किया है। अब अपना पावर एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर जो व्यक्ति जिसकी फ्री कंसेंट नहीं होती वो अगर अपने पावर का, अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं voidable contract. Are they void? No, they are void able. They are void able. They are void able. They are void able because ability to turn the contract void lies with the person whose free consent is so caused. हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर निर्जरा चुप रहती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन निर्जरा अगर चुप नहीं बैठती, उसके बाद में पुलिस कंप्लेन करवाती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और सब चीजें बैक टू ओरिजिनल रिस्टोर कर दी जाती है। यानी जो कुछ भी रजिस्ट्री हुई उसका कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई भी जो बोलते कुछ उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। अपने आप जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, भाले के नाम पे भले ही रजिस्ट्री हो गई, अपने आप फिर से निर्जरा के नाम पे घर कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब ये अधिकार का इस्तेमाल निर्जरा करेगी, क्योंकि कोर्शन किसके ऊपर अप्लाई हुआ है? निर्जरा। धमकी किसे दी है? निर्जरा को। तो बताने का काम किसका है? प्रूव करने का काम किसका है? कोर्ट में कौन बोलेगा? निर्जरा। अगर निर्जरा कोर्ट में कुछ बोल ही नहीं रही तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? तो चलो निर्जरा ने कुछ बोला नहीं, किरण उसकी रूममेट है, उसको लगा निर्जरा के साथ नाइंसाफी, उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाले गैंगस्टर ने मेरे दोस्त को फंसाया है, धमकी दी है, घर हड़प लिया है। कोर्ट में केस आई, भाले ने पहले बोल के रखा अगर तुमने जज साहब के सामने जबान खोली तो पापा मम्मी किडनैप। निर्जरा डरी हुई थी। जज साहब ने पूछा बताओ बेटा क्या हुआ? निर्जरा बोली कुछ नहीं सर। फिर किरण बोली नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रही, इसे धमकी दिया है भाले गैंगस्टर। भाले गैंगस्टर आंख निकाल गए। बेचारी निर्जरा डरी की डरी रह गई और बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। जज के सामने कुछ बोले नहीं। किरण बहुत बोल रही है, लेकिन किरण का बोलना कोई काम का है क्या? बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज फ्री कंसेंट इज कॉस्ट। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? निर्जरा। फ्री कंसेंट किसकी नहीं है? निर्जरा की। किरण की फ्री कंसेंट का यहां पे कोई सवाल है क्या? नहीं। तो किरण का बोलना कुछ महत्व रखता है क्या? नहीं। निर्जरा वहां पे चुप है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टियों में से अगर किसी पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती तो वो जो पार्टी है उसे हम कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं हम? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी यानी वो पार्टी जिसके साथ नाइंसाफी होती है। अब जैसे जिसके साथ कुछ लॉस होता है। अब इन दोनों के केस में अग्रीव्ड पार्टी कौन है? निर्जरा। अग्रीव्ड पार्टी कौन है? निर्जरा। अग्रीव्ड पार्टी हैज अ राइट टू टर्न द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन अगर अग्रीव्ड पार्टी कोई एक्शन नहीं लेता, अग्रीव्ड पार्टी अगर कोई एक्शन नहीं लेता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद घर का मालिक हमारा भले ही रहेगा। लेकिन अगर घर नाम पे करने के बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटा लेती है, पापा मम्मी को नाना नानी के यहाँ भेज देती है और फिर बाद में कोर्ट में जाकर बोलती है कि मैंने इसको घर बेचा था, हाँ मैंने इसे 10 लाख रुपए लिए, हाँ मैंने घर इसके नाम पे करा, लेकिन ये जो भाले है बहुत गंदा बच्चा है, इसने मेरे को धमकी दी है, इसने मुझे धमकी दी है, बोले तुम्हारे पापा मम्मी को मैं किडनैप कर लूंगा, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब बोले बेटा तुम चिंता मत करो, इसको अंदर जेल में डाल दो और जो घर भाले के नाम पे किया गया है वापस से निर्जरा के नाम पे कर दो। और निर्जरा बेटा तुम्हारे पास जो 10 लाख है वो भी देने पड़ेंगे, नहीं तो उसका पार्टी नहीं कर सकते अपन। सो बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैव टू बी रिस्टोर्ड। जो पैसे निर्जरा को मिले वो भी उसको लौटाने पड़ेंगे, जो घर भाले को मिला है वो भी उसको लौटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं घर भी मेरा पैसे भी मेरे, समझे? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइड करार दिए जा सकते हैं बाय द पार्टी जिसका फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। लेकिन ये पावर सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के पास होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे एग्जाम्पल में सारे पावर किसके पास है? निर्जरा के पास, बिकॉज शी इज एन एग्रीड पार्टी हुज फ्री कंसेंट इज सो कॉज। सो निर्जरा अगर सवाल खड़े करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर निर्जरा चुप बैठती है, अपनी फ्री कंसेंट नहीं होने के बावजूद अगर चुप बैठती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, सीधे बैठो स्नेहल, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में से किसी पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती, ऐसा कब कब माना जाता है? उसके अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे। फर्स्ट था कोर्शन। जब कभी भी किसी के ऊपर मेंटल प्रेशर या फिजिकल प्रेशर, जैसे बंदूक की नोक पर रख के बोल दिया साइन करो, किसी भी व्यक्ति पे मेंटल प्रेशर, किसी भी व्यक्ति पे फिजिकल प्रेशर अगर आप एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि फिर वो कोई आपकी बात सुने, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इसे हम कहते हैं कोर्शन। अगर कोर्शन रहेगा, अगर कोर्शन रहेगा तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जहां कोर्शन होता है वहां फ्री कंसेंट नहीं होती। अभी हमारा एग्जाम्पल किस चीज का है? कोर्शन का। यहां फ्री कंसेंट है क्या? नहीं। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर दोनों पार्टियों में से एक पार्टी एक ऐसे पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सके, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट है ना। अब हमारा प्रेम है और मैं हूं, आई एम इन अ पोजीशन और आई होल्ड सो मच इन्फ्लुएंस एंड प्रेम दैट आई कैन मेक हिम डू एनीथिंग। तो फिर मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम्हारा घर मेरे नाम पे कर दो, तुम्हारा घर मेरे नाम पे कर दो, बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। वो बोलता नहीं नहीं सर, मैं 5 लाख में मेरा घर कैसे दूं? मेरा घर तो 50 लाख में बिकता है। दे रहे कि नहीं दे रहे? सर नहीं दूंगा सर मैं। ठीक है, 12वीं फेल, प्रैक्टिकल की तुमको मार्क ही नहीं मिलेगी। मैं ना डरा रहा ना मैं धमका रहा, लेकिन मैं मेरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं मेरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेट्स से कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है जो पैरालाइज पड़ा है, बेड पे पड़ा है, और उस पेशेंट के पास कोई नर्स है। वो नर्स जो भी है वो उसको पूरे वक्त अटेंड करता है, करती है। नर्स करता भी होता है, करती भी होती है। नर्स मतलब नर्स ही रहता बेटा, ज्यादा पिक्चर में देखा करो। तो उसे एक अटेंडेंट होता है।
अब जो व्यक्ति पैरालाइज है 2-4 महीने से ऐसे ही बेड पे पड़ा है, वो पूरा व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो वो जो अटेंडेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंसी देख के अगर फायदा लेकर उससे कोई दस्तखत करा लेता है तो ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है, रोज देखते हो तुम घर में अनड्यू इन्फ्लुएंस, मम्मी और पापा। Where papa does everything, gupchup. Because mom is in such a position where she can easily dominate your father. Yes or no? है ना? हंस रहा देख। So ये हो गया undue influence। हमारे इंडियन सोसाइटी में वुमेन और वाइफ always has a influence over husband. So this is situation of undue influence. Teacher, student, doctor, patient। हम पूछते का डॉक्टर इतना जरूरी है क्या? वो बोलता जितने गपचुप स्कैन विन सब कुछ कर लेते, ये टेस्ट कर, वो टेस्ट कर, ये स्कैन करा, वो स्कैन करा। उसको बोलते का क्यों करने का है? क्योंकि हमारा उसके ऊपर भरोसा है और वो जो बोलेंगे वो करेंगे, है ना? सो कैन आई से द डॉक्टर इज इन पोजिशन वेरी कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द पेशेंट। जो चाहे वो अपने फीस के लिए, कुछ भी जरूरत नहीं फिर भी, अब ये गया मेरे को जुकाम हुआ, थोड़ा सा थोड़ी सी बुखार आई, अब इसको लूटने का तो कुछ भी कराएंगे उसे। MRI स्कैन कराओ, ये स्कैन कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ऐसा कराओ, गोलियां लो, है ना? सो डॉक्टर इज इन पोजीशन वेर ही कैन टेक अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इस इन्फ्लुएंस के द्वारा अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी से कुछ काम करवा लेता है तो इसे भी एक फ्री कंसेंट का केस नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में इसका घर में कितने में ले रहा हूं? 5 लाख में। इसकी इच्छा है क्या? नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? तू घर देने तो तुझे मैं फेल कर दूंगा। फेल होने के डर से ये मेरे को घर दे देता है। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद फ्री कंसेंट। विद फ्री कंसेंट? नो, विदाउट फ्री कंसेंट। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेम। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेम। अनड्यू इन्फ्लुएंस है यहां पर। आई एम ट्राइंग टू मिसयूज माई इन्फ्लुएंस ओवर माई स्टूडेंट। यस और नो? हाँ या ना? तो ये वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होगा? हुज फ्री कंसेंट इज सो कॉस्ट। फ्री कंसेंट किसका नहीं है? प्रेम का। ऑब्जेक्शन किसने लेना होगा? प्रेम ने। नहीं लेता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझे? नेक्स्ट सिचुएशन, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो सिचुएशन वेर इज नो फ्री कंसेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे कहेंगे? जैसे कि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, एक्टिवा आई, एक्टिवा और एविएटर, तीनों मोपेड है। मैं विष्णु के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, वेर आई सेड विष्णु मुझे अपनी जो मोपेड है वो बेचना है। तो विष्णु सेड ओके आई विल बाय योर मोपेड। सर कितने में? मैंने कहा 30,000 में। मैंने क्या कहा? 30,000 में। मैंने क्या कहा? 30,000 में। क्या कहा बेटा मैंने? 30,000 में। But there is misrepresentation in the contract. There is misrepresentation in the contract. मैंने उसको बताई थी एविएटर और जब बेचने की बात है तो मैं उसे बेच रहा हूं एक्टिवा। वो लेगा क्या? वो लेगा क्या? तो जब कभी भी मिसरिप्रेजेंटेशन होगा तो उसने जो हाँ भरी थी वो कौन सी गाड़ी देखकर भरी थी? एविएटर। कौन सी गाड़ी देखकर? एविएटर। बाद में मैं उसको बोल रहा हूं एक्टिवा लो, लोगा क्या? लेगा क्या वो? नहीं। तो ये होगा मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी कंसेंट थी नहीं। उसकी कंसेंट किसके लिए थी? एविएटर के लिए। नेक्स्ट, फ्रॉड। एक का डबल। बिपाशा जाती है, बाबूराव को बोलती है ऐसा ऐसा करेंगे, एक का डबल करेंगे, वो पूरा पैसा बिपाशा को दे देता है। बिपाशा लेती है, पैसे लेके फुर हो जाती है। पैसे लेके फुर हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट को तो ऐसा बताया जाता है जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है? फ्रॉड करना। तो जब कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है तो क्या सो खुशी से खुद के फ्री कंसेंट से बाबूराव ने पैसे दिए थे क्या? नहीं, क्योंकि फ्रॉड में चीट करके बिपाशा उनसे पैसे लेती है। तो फ्री कंसेंट है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं। तो जब कभी भी फ्रॉड रहेगा तब भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। और फ्रॉड के अंदर भी जो पार्टी है जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है, जैसे बाबूराव, ही विल हैव द राइट टू टर्न द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन बाबूराव अगर चुप बैठता है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अभी ओके। लास्टली इज मिस्टेक।
जब हम टाइपिंग एरर और क्लेरिकल एरर ऐसा जब होता है तो इसको हम कहते हैं मिस्टेक। मिस्टेक के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होती, लेकिन मिस्टेक सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है, मिस्टेक सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे फ्री कंसेंट नहीं होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा वॉइड करार दिया जाता है। वॉइड सीधा क्या करा दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या करा दिया जाता है? वॉइड। हाँ या ना? यस और नो? राइट। जैसे कोई टाइपिंग में एरर हो गया, जैसे टाइपिंग में एरर हो गया, लेट्स से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड टिया, मेरे और टिया के बीच में। टिया एक स्टूडेंट है 12th में, मेरे और टिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अपना घर उसे बेचूंगा और वो मुझे उसके बदले में 50 लाख रुपए देगी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की जो सेल अग्रीमेंट हुई, उस सेल अग्रीमेंट में टिया के नाम की जगह पर, टी के जगह पर पी लिख दिया गया एंड इट बिकेम पिया। Now there is a sale agreement between दिनेश and पिया, और पिया नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। So there is a mistake in the agreement. There is a mistake in the agreement. Now these are clerical और printing errors और typing errors। क्या इसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं है? ठीक है, मेरा कोई पिया के साथ कोई संबंध नहीं है और ना कोई पिया के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने टिया नाम के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? देयर इज मिस्टेक। मिस्टेक जब होती है तब फ्री कंसेंट नहीं होता, लेकिन जब मिस्टेक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइड हो जाता है, क्योंकि पिया नाम की कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट सीधा क्या हो गया? इनवैलिड। टिया ने बोलना या मैंने बोलना और उसको वॉइडेबल करना, वो सवाल यहाँ पे नहीं होता। तो फ्री कंसेंट कब नहीं होता है? जब कोर्शन होता है, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जब मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, जब फ्रॉड होता है, जब मिस्टेक होता है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर 5 चीजें हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये 5 चीजें हैं, तो देयर इज नो फ्री कंसेंट, देयर इज नो फ्री कंसेंट। और मिस्टेक को छोड़कर बाकी 4 अगर चीजें मौजूद हो तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वॉइडेबल। जिस पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है ड्यू टू कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ऐसे पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकती है। ऐसे पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सकती है, हाँ या ना? लेकिन अगर मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, यानी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? इज इट ओके? अब डिफरेंशिएशन बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये आप लगा सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं? पहला क्या है मीनिंग? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर करते हैं तब क्या होते हैं? वैलिड। तब क्या होते हैं? वैलिड। बाद में क्या हो जाते हैं? वो इनवैलिड। अग्रीमेंट, अभी दोनों का डेफिनेशन वहां दिया है। नेक्स्ट, कॉज। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड इस वजह से हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस या कुछ घटनाएं घट जाती है जो दोनों पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? जब अग्रीव्ड पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेती है और अपना पावर एक्सरसाइज करती है, और अगर अग्रीव्ड पार्टी चुप बैठता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। Void contract cannot be performed if aggrieved party does not with reasonable time exercise his right to avoid the contract. Any party can sue other party for claiming the performance of the contract. निर्जरा ना कुछ बोलती है, निर्जरा ना कोई कंप्लेन करती है और दोनों के बीच में सेल का अग्रीमेंट हो गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपलसरी निर्जरा को परफॉर्म करना होगा। अगर उसे परफॉर्म नहीं करना है तो उसे ऑब्जेक्शन उठाना होगा, उसे बोलना होगा कि उसे धमकी दी गई है। समझ में आ रही है बात? राइट। राइट्स, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी। अगर इनवैलिड एग्रीमेंट है, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से दोनों भी पार्टी में से किसी भी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। जैसे बाबूराव और राजू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो शुरुआत में क्या था? वैलिड, बाद में क्या हो गया? वॉइड। बरोबर। अब मुझे बोलो किसने किसे धोखा दिया? किसने किसे धोखा दिया? दोनों ने भी एक दूसरे को नहीं दिया, क्योंकि दोनों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। ना बाबूराव ने कोई धोखा दिया, ना राजू ने कोई धोखा दिया। दिया क्या किसी ने किसी को धोखा? नहीं। तो किसी को भी अधिकार देने का कोई फायदा है क्या? किसी को भी कोई अधिकार देने का फायदा है क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों में से किसी भी पार्टी को कोई भी राइट या अधिकार नहीं मिलता। लेकिन जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं,
अग्रीड पार्टी कौन है? निर्जरा, जिसके ऊपर कोर्शन अप्लाई किया जा रहा है, जिसे धमकाया जा रहा है, तो इसके साथ इंसाफ हो रहा है क्या? नहीं। तो इसके लिए इसको राइट है, द पार्टी हुज फ्री कंसेंट इज सो कॉस्ट हैज अ राइट टू टर्न द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। तो ये राइट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, इस तरह का कोई भी अलग राइट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अभी ओके? हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब फ्री कंसेंट है, ऐसा थोड़ी होता। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट का कैसा है बेटा, जब एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट देखा जाता है। अगर खुद की इच्छा से निर्जरा बोल रहे, अब समझ ले, जैसे इसका बोलना है कि सर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे फ्री कंसेंट है, बाद में फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, फिर वो बाद में नहीं बोलने को जमता। अभी समझ ले, भाले ने कोई धमकी नहीं दी, कुछ नहीं दी, लेकिन निर्जरा को घर बेचना था, तो अपने खुद के अपने इच्छा से निर्जरा ने 10 लाख रुपए का घर भाले को बेचने का प्रॉमिस किया है। अब कोर्शन विर्शन कुछ नहीं है, और अब एग्रीमेंट हो गया सेल का, 10 लाख रुपए भाले को दे दिए, भाले ने निर्जरा को दे दिए। अब घर बेचने की बारी है। इससे पहले कि वो घर बेचती, श्रीनिवास ने कॉल किया, अच्छा निर्जरा, मैंने सुना कि तुम तुम्हारा घर भाले को बेच रही हो। तो बोले हाँ, एक काम करो, भाले को वो घर मत बेचो, वो शायद 10 लाख रुपए तुम्हें दे रहा है। बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा, तुम वो घर भाले को मत बेचो, मुझे बेचो। अब बाद में निर्जरा पलट रही है, बोल रही मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, इसने मेरे को धमकाया था, इसलिए फिर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो फिर वो घर तुम्हें बेच सकेगी और तुमसे 25 लाख रुपए ले सकेगी। ऐसे तो हर कोई कर लेता, ऐसे तो हर कोई कर लेता। तो ये सही है क्या? नहीं। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो देखा जाएगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने हाँ भरी है ना, तो वही देखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फ्री कंसेंट है नहीं कंसेंट है उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो बोल रही मेरी फ्री कंसेंट नहीं है, तो इसे प्रूव कैसे करोगे? ऐसे तो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, ऐसे तो हर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। तो वो कोर्ट में प्रूव हो जाता है, कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है सब चीजें। और कोर्ट में आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्री कंसेंट का जो कुछ भी टेस्ट है वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही देखा जाता है। आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्री कंसेंट का कोई भी पॉइंट कोर्ट में डिस्कस भी नहीं किया जाता। अरे गेट माय पॉइंट? क्योंकि ऐसे तो हर कोई कंसेंट दे देता और बाद में मुकर देता, कोर्शन ये धमकी दे रहा मेरे को, सही है ना? राइट। नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल अग्रीमेंट। A illegal agreement which is for an unlawful purpose, or you can say for an unlawful objective, agreement for an unlawful consideration, agreement for an unlawful consideration are called as illegal agreement. Illegal agreement are always void. Illegal agreement are void from the start. Hence illegal agreement are called as void ab initio। जो अग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वॉइड ab initio। क्या कहते हैं बेटा उसे? वॉइड ab initio। अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। जैसे सुपारी देना, किसी को किडनैप करना, किसी को जान से मार देना, राइट, ड्रग्स की स्मगलिंग करना, क्या ये सब चीजें लीगल है? These are forbidden by law। forbidden by law यानी not allowed by law, not allowed by law। illegal contract cannot be enforceable by law। जैसे कि मैंने कहा, विष्णु ने प्रॉमिस किया भाले को मैं 1 लाख दूंगा, तुम सर को उड़ा दो, भाले ने मुझे उड़ा दिया, अब विष्णु पैसे नहीं दे रहा, कोर्ट में जाके बोले जज साहब I want to enforce the contract, I killed Dinesh sir, now he is not paying me money। Do you think it can be enforced? Illegal contract can never be enforced by law because they are void ab initio। Illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। अब let's say I enter into contract
विथ वरद, मैंने वरद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें मेरी गाड़ी बेचूंगा BMW, और उसके बदले में तुम मुझे 3 लाख रुपए दे देना। नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड वरद वेर आई हैव प्रॉमिस्ड टू सेल हिम बाइक, वेर आई हैव प्रॉमिस्ड टू सेल हिम बाइक एंड वरद हैज प्रॉमिस्ड to pay me 3 lakh rupees for same. हाँ या ना? Yes or no? Now this is a void agreement. Can you tell me the reason? Because this is an agreement or contract which is entered into with a minor. Are you 18? हाँ? हाँ? 18 साल हो गए बेटा तुम्हारे? 17 है ना तो अभी? तो 18 साल पूरे हुए क्या तुम्हारे? नहीं हुए। अभी हुए क्या? अभी नहीं हुए ना तो रुकना बेटा। तेरा बर्थडे कब है? 21 जुलाई। तो बेटा तुम 20 जुलाई तक भी 18 नहीं हुए, समझ लो। नाउ ही इज अ माइनर, एक सेकेंड, ही इज अ माइनर। माइनर यानी वो जिसकी उम्र 18 साल नहीं होती एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद अ माइनर, प्लीज पे अटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद अ माइनर आर ऑलवेज वॉइड, आर ऑलवेज वॉइड, यानी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कानूनी तौर पे एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंडिया का लॉ ये कहता है कोई भी केस में माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती। इसने गाड़ी ले ली, गाड़ी चला ली, गाड़ी ठोक दी, गाड़ी गिरा दी, जला दी, फेंक दी, सब कर दी। अब गाड़ी के 3 लाख रुपए नहीं दे रहा तो मैं उसको जेल में नहीं ले जा सकता, कोर्ट में नहीं ले सकता कि इससे मेरे 3 लाख रुपए वसूल करो। अभी भी नहीं, 18 साल का होने के बाद भी नहीं, अभी भी नहीं और 18 साल का होने के बाद भी नहीं। यही माइनर का फायदा है। तो 2-4-6 महीने कुछ करना है तो कर लो जुगाड़। बिकॉज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विथ अ माइनर आर ऑलवेज वॉइड। अब मेरा पॉइंट क्या है? ऑल अग्रीमेंट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट, प्लीज पे अटेंशन, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स are always void, but all void agreements are not illegal. Undoubtedly मेरे और वरद के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ वो क्या है? एक void agreement है। लेकिन गाड़ी बेचना और बेची हुई गाड़ी के बदले में पैसे लेना, क्या ये एक इलीगल अग्रीमेंट है? क्या ये कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है? हमारे देश में अलाउड है कि नहीं है? है। मैं जिसे चाहे उसे मेरी गाड़ी बेच सकता हूं और जिसे चाहे उससे पैसे ले सकता हूं। हाँ, मैं मानता हूं मैंने एक माइनर के साथ अग्रीमेंट किया है, जिस वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना है। लेकिन क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव इलीगल है? क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव इलीगल है? क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन इलीगल है? नहीं है? है नहीं है? नहीं है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन, ये सब लीगल है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है। लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है। विष्णु के और भाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां इसने सुपारी दी मुझे मारने की 1 लाख रुपए की, यह कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरीली वॉइड होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरीली वॉइड होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं सेंटेंस? ऑल वॉइड, all illegal contracts are void, all illegal contracts are void, all illegal contracts are void, but all void contract are not illegal। समझ गया? समझा क्या? इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि इनिशियल से ही इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड। जैसे सुपारी वाला अग्रीमेंट, सुपारी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्टार्ट से क्या है? इलीगल है। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। जैसे मैंने कहा दाइमा के बीच में और भाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यह कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? गाड़ी उसने किराए पे दी, उसके बदले उसने किराया लिया है उससे, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी का इस्तेमाल मर्डर के लिए हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप क्या हो जाएगा? वॉइड। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टू अ इलीगल अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, collateral contract to a void agreement may be valid or may be void, depends on the case. Are we okay? हाँ, कुछ नहीं होता।
क्या इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, इरादा क्या है बेटा तुम्हारा? वो पूछ रहा है 18 के नीचे उम्र है, किसी को मार दिया तो कुछ होता है क्या? बेटा इरादा क्या है? आता मतलब कि तुम्हारे को आधा एक घंटा पढ़ा है तो मेरे को मारोगे क्या जान से? बच्चे की जान लोगे क्या? अब लास्ट टाइप वैलिड का लास्ट टाइप अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते उसे हम कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई विल सेल माई बाइक टू माई सेल्फ फॉर ₹3 लाख। कैन देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सिंगल पर्सन? Contract says there compulsorily has to be two parties to a contract. To a contract to be enforceable, there has to be two parties. I am entering into contract with myself, hence this contract is not enforceable. Such kind of contract are called as unenforceable by contract. Essentials of valid contract जिस contract में नहीं होते, क्या वो enforceable होते हैं क्या? नहीं, वो सारे क्या होंगे? Unenforceable contract. जैसे मेरा और वरद का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर है, तो क्या एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन से अनएनफोर्सेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड द सेम। सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एनफोर्सेबल एज देयर इज सम मिस्टेक और टेक्निकल एरर इन द अग्रीमेंट। जैसे टिया पिया का मैंने नाम दिया, टिया पिया के एग्रीमेंट में मिस्टेक है, मिस्टेक होने के कारण वो क्या है? एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पिया नाम की कोई व्यक्ति नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है क्या? नहीं। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल, ये तो अब तुम कर लोगे कि बताऊं? डेफिनेशन तो बता दो। वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। नेचर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ। जैसे गाड़ी लेना बेचना इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, लेकिन किसी को मारना इज फॉरबिडन बाय लॉ। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। आप समझ लो मैंने इसको गाड़ी बेची, इसने पैसे नहीं दिए, गाड़ी इसने खराब कर दी, सब हो गया, लेकिन ना इसको कोई आईपीसी की धारा लगेगी ना मुझे कुछ धारा लगेगी, ना मुझे इसके लिए। अब मैंने उसको गाड़ी बेचा, वो माइनर है, क्या इसके लिए मुझे फांसी की सजा हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं। और ना उसे होगी, वो छोटा था माइनर था, उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन भाले ने मेरा मर्डर किया है तो उसको आसानी से छोड़ेंगे क्या? उसको आईपीसी की धारा के अंदर फांसी की सजा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, आया ना? सो इसका मतलब क्या है? पनिशमेंट जो है कहां पर है? आपको इलीगल एग्रीमेंट में, और इस तरह की आईपीसी की पनिशमेंट आपको वॉइड एग्रीमेंट में नहीं होती। कोलैटरल एग्रीमेंट्स, कोलैटरल एग्रीमेंट टू वॉइड एग्रीमेंट मे बी वैलिड, मे बी वॉइड। कोलैटरल एग्रीमेंट टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, इज ऑलवेज वॉइड, हाँ या ना? अब आगे का जो फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन है ये सिर्फ 10 मिनट का ही है, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, 10 मिनट का ही है और बहुत इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन द कॉन्ट्रैक्ट में बी क्लासिफाइड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दे मे बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और implied contract. Contract may be classified as express contract और implied contract. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन आइदर इन ओरल फॉर्म और इन रिटन फॉर्म आर कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जब कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करते हैं, लेट्स से गणेश सोल्ड हिज बाइक टू इस्नू, इस्नू प्रॉमिस टू पे 20,000, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ये एग्रीमेंट राइटिंग में है, इट इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। गणेश ने फोन लगाया इस्नू को, इस्नू ने फोन पे बोला मैं ले लूंगा, मैं 20,000 में बेच रहा हूं, ठीक है डन, 20,000 में तुम्हारी गाड़ी खरीद लूंगा। नाउ देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन रिटन फॉर्मेट और मे बी इन द ओरल फॉर्मेट। फोन पे बोला वो क्या है? ओरल, फिर भी क्या है वो? एक्सप्रेस। और राइटिंग में बॉन्ड पे अग्रीमेंट करा के लिए वो क्या है? वो क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बट इन रिटर्न। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में बी इन राइटिंग और मे बी इन ओरल फॉर्मेट। मुंह जबानी को भी हम कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और राइटिंग में भी है वो भी क्या माना जाएगा? एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट, एंड द कम्युनिकेशन में बी डन ओरली
or the communication may be done in writing. Whatever communication between Ganesh and Vishnu can be done on a paper and done on a bond, done on an agreement, it will be express contract, that to be in writing. If it is on telephone, it will be an express contract which is having oral communication, Communication can be in written or oral or expressed in words. A contract can be expressed if the terms of the contracts are expressed in orally or in writing. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सप्रेस किए जाते हैं आइदर ओरली और आइदर इन राइटिंग. इज इट ओके? जो फोन पे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, वो क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन ओरली. दोनों के बीच में राइटिंग में पूरा सब कुछ हुआ है, वो क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग. नेक्स्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. Contract which come into existence by implication of law or action are called as implied contract. क्या बोलते हैं हम? Implied contract are those contract which come into existence due to implication of law, or by action are called as implied contract. Let's say पुणे के एफसी रोड पे जूली खड़ी है हमारी, और जूली वेट कर रही है बस स्टैंड पे. जूली एफसी रोड से स्वारगेट जाना चाहती है. जूली एफसी रोड से स्वारगेट जाना चाहती है. अब पीएमटी जो लोकल बस है वहां की, वो एफसी रोड के उस बस स्टॉप पे आती है, उसके ऊपर नेम प्लेट लिखा होता है स्वारगेट. तो जूली को समझ गया इस बस में मैं अगर बैठूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा? स्वारगेट. तो बस आकर बस स्टॉप के सामने रुकती है और जूली हमारा उसके अंदर चढ़ जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है. सी, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? देर इज अ प्रपोजल, देर इज एन ऑफर. बस का बस स्टैंड पर आकर रुकना ये ऑफर है सभी पैसेंजर्स को, दैट वी आर रेडी टू ट्रांसफर यू फ्रॉम एफसी रोड टू स्वारगेट. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. बस आकर बस स्टॉप पे खड़ी है, वो अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है, जहां वो आपको एफसी रोड से स्वारगेट लेके जाने के तैयार है. एक्सेप्टेंस कब होगा? जब आप बस पे चढ़ोगे या नीचे खड़े रहोगे. जब आप बस में चढ़ जाते हो, इसका मतलब आपने ये सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया है. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. प्रॉमिस में क्या है? सेट ऑफ प्रोमिसेस. अब सेट ऑफ प्रॉमिस क्या है? द बस प्रोमिसेस टू ड्रॉप जूली टू स्वारगेट एंड जूली प्रोमिसेस टू पे द फेयर. जो बस की टिकट टू द पीएमटी. यस और नो? Set of promises forming the consideration for each other. यानी जूली के लिए कंसिडरेशन क्या है? कि पीएमटी ने मुझे स्वारगेट पे छोड़ना है. पीएमटी के लिए कंसिडरेशन क्या है? जितने टिकट के पैसे है उतने पैसे देना. फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन क्या यहां पे ओरल एक्सप्रेशन है क्या? कुछ भी नहीं. बस आके रुकी, ये बस में चढ़ गया, बैठा, टिकट के पैसे दिया, उतर गया. Now this is a implied contract by action. समझ में आ रही है क्या बात? It is a implied contract by action. एटीएम है, आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डालते हो, पिन एंटर करते हो, कैश विड्रॉ करते हो. There is a contract between you and ATM, that is bank. There is a contract between you and the bank. Now this is a implied contract, जहां पे आपके एक्शंस के द्वारा आप एटीएम में गए, डेबिट कार्ड डाले, पिन डाले, पैसे का अमाउंट डाले, पैसे निकाले, जेब में रखे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. क्या कहीं पर भी बैंक के किसी स्टाफ में और उस कस्टमर के बीच में कहीं ओरल इंटरेक्शन है क्या? ओरल इंटरेक्शन? नहीं. क्या कहीं पर भी दोनों के बीच में कोई राइटिंग एग्रीमेंट हुआ क्या? चलो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं इसमें डेबिट कार्ड डालूंगा और इसमें से 10,000 रुपए निकालूंगा. ना कहीं ओरल एग्रीमेंट हुआ, ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट हुआ. लेकिन हमने जो एक्शन किया, हमने जो एटीएम का इस्तेमाल करके पैसे निकाल लिए, ये एक्शन ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक टाइप है ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ टाइप ऑफ अ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. जब आपके एक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से हो सकते हैं, आइदर बाय एक्शंस, आइदर इंप्लाइड बाय लॉ. अब एक्शन का समझा सबको? एक्शन समझा क्या? आया ना? अब इंप्लाइड बाय लॉ समझो. इंप्लाइड बाय लॉ कैसे है? हमारी जूली एफसी रोड पे खड़ी है, एफसी रोड पे घूम रही है, और घूमते घूमते अचानक उसे एक पॉकेट मिल जाता है. वो पॉकेट होता है
ध्रुव शाहने का। अभी के लिए मान लो उसे पता नहीं ध्रुव कौन है, तो वो पॉकेट देखता है तो पॉकेट के अंदर मस्त 25-30 हजार रुपए रहते हैं, एटीएम रहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब चीजें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके कैश है 25-1000 रुपए, राइट, सब कुछ उस पॉकेट में, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सब, आधार कार्ड सब है। अब ये जो पॉकेट उसे मिला है, क्या ये पॉकेट का लेकर उसके अंदर का पैसा निकाल कर मस्त पिज्जा सिटी पे पिज्जा खा सकता है क्या ये? हाँ, पार्टी कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। हो 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 मस्त उड़ाएंगे, ए चलता है क्या? जूली जाके चलता है ऐसे? चलो, तो मैं रास्ते से जाऊंगा, मुझे पॉकेट मिल गया, उस पॉकेट के अंदर 1 लाख रुपए थे, वो किसके है क्या है मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने पैसे लिए और उड़ा दिए, चलता है क्या ऐसे? चलता नहीं? चलता। कानून हमारा ये ऐसे नहीं बोलता। कानून क्या बोलता है, वो जो प्रॉपर्टी, वो जो पॉकेट, वो जो रोड पे पड़ा है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? ध्रुव की। इसकी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। तो अगर ये पॉकेट उठाकर पैसे खर्च करता है तो इसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा जा सकता है, और इसने पैसे चोरी करके पैसे खर्च किए, ऐसा उसके ऊपर केस हो सकता है। जो आपका नहीं है, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। किसी और की चीज को अपना समझोगे तो फिर बाद में उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। तो अब पॉकेट जो है, अब पॉकेट जो है वो किसका है? ध्रुव का। सुनो मेरी बात, इंप्लाइड बाय लॉ समझो। अच्छा ठीक है, पॉकेट का छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेट्स से गणेश और विष्णु बैठे हैं और समर का मंथ चल रहा है, और मम्मी ने बोला था कि आज हम आम का रस बनाते हैं, राइट? तो एक काम करो, मार्केट से जाकर 1 डजन हाफूस आम, अल्फांसो मैंगोज लेकर आओ। तो गणेश मार्केट में गया और मार्केट में जाकर 1 किलो अल्फांसो मैंगो 1000 रुपए के लेकर आ गया। वो लेकर आया, फिर विष्णु बैठा था दुकान में, अरे गणेश इकड़े, वेयर गोइंग? बोले घर जा रहा हूँ। अरे हाँ, थोड़ी बात करने की है। फिर वो बैठा, क्लास की इधर उधर की गप्पे मारने लगा, बातें गप्पे करने लगा। फिर बातें होने के बाद ठीक है गणेश बोला, अब मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं जाता हूँ, घर जाना है। बोले ठीक है जाओ, ओके बाय। तब गणेश चला गया, लेकिन गलती से बैग वहीं दुकान में छोड़ गया। और जैसे ही गणेश जाता है, विष्णु आम को देखता है, आम रसीला। अब जो है विष्णु ये कंसीडर करेगा कि आम की थैली मेरी है, मम्मी को ऊपर ले जाकर देगा, मुझे आम का रस पीना है, इस आम को लो और रस बनाओ और पी लो और गटार लो। चलेगा? चलेगा क्या? कि बाद में जब गणेश वापस आएगा अपनी थैली मांगने, तो इट विल बी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी एज पर द लॉ टू रिटर्न बैक दैट पर्टिकुलर बैग ऑफ मैंगो एज इट इज टू गणेश। हाँ या ना? तो वैसे पॉकेट का है। पॉकेट किसको मिल रहा? जूली का है। क्या उसका? उसके अंदर के पैसे निकाल के खर्चा करेंगे, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो करेगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? चोर। क्या कहलाया जाएगा? चोर। सो देर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। There is a implied contract by law where the finder of the goods has to return the goods to the original owner, and that restoration of the goods to the original owner should be as it is. जूली को अगर पॉकेट मिला है, उसको एज इट इज ओरिजिनल ओनर को देना होगा, वो भी पूरे 25,000 के साथ। ऐसा नहीं उसमें से 1-2 नोट निकल के रख लिए, ऐसा नहीं चलता। सो देयर विल बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी उसको देना नहीं देना उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसको मिला है तो वो खुद का नहीं समझ सकता। इम्प्लाइड बाय लॉ है, कानून के द्वारा इम्प्लाइड है कि ये जो चीज जिसकी है उसे वो लौटानी पड़ेगी। भले ही ध्रुव के और जूली के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि ये पर्स तुम ढूंढ के मुझे लौटा के दो, लेकिन कानून से इम्प्लाइड है, इसीलिए कंपल्सरीली उसको वो पॉकेट उसे लौटाना होगा। और लौटाना भी कैसा होगा? जिस सिचुएशन में मिला वैसे ही लौटाना होगा। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है,
भले ही दोनों के बीच में कुछ डिसाइडेड नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जूली जो है कंपलसरी ये पॉकेट ध्रुव को देगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। क्या कहते हैं इसे? कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ। हाँ या ना? समझे? समझे? नाउ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू सब टाइप्स। देखो, चलो चलो करो मत, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद छोड़ेंगे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, दो तरीके में। पहला क्या है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या है? क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी मत बोलना, क्वाज़ाई, tacit and quasi contract. Now what is tacit contract? The word tacit means silent. Tacit का मतलब होता है silent. Tacit contract hence contract which are by action of the parties and not by express of words and written agreement. यानी जो implied contract के अंतर्गत जूली बस में बैठी और बस में बैठने के बाद बस स्टैंड पे उतर गए, that is a tacit implied contract. Are we okay? Quasi contract. Quasi contract are type of implied contract. Quasi contract is not an actual contract but resembles like a contract. It is a contract implied by law. और जो दूसरा वाला मैंने एग्जांपल दिया था implied contract में, जहां पर पॉकेट मिलने के बाद ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा कि जूली ने वो वैलिड एज इट इज ध्रुव को देना होगा. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्प्लाइड बाय लॉ एंड इट इज क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड बाय लॉ जो होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट. और जो एक्शन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब बस में बैठ गए, उतर गए, टिकट ले लिए, सब कर लिए, कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, इस तरह के इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो एक्शन के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इसे हम कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहते हैं इसे? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. आप मॉल में जाते हो, चीजें खरीदते हो, वो ट्रॉली लेते हो, बराबर चीजें भर लेते हो, बिलिंग काउंटर पे जाते हो, चीजें दिखाते हो, बिल का पेमेंट करते हो, चीजें लेके निकल जाते हो. क्या कहीं पर भी ओरल इंटरेक्शन होता है? नहीं. क्या कहीं पे रिटर्न एग्रीमेंट लिखा के लेते हैं? नहीं. आप मॉल में जाना आपका एक्शन है, आपने चीजें सेलेक्ट करना ये आपका एक्शन है, आपने बिलिंग काउंटर पे चीजें रखना आपका एक्शन है, उसका बिल देना और वो चीजें लेना और निकलना ये एक्शन है. तो पूरे सिनारियो में, पूरे एग्जाम्पल में क्या है? एक्शन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. तो ये एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्शन है. और जब एक्शन से इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड बाय लॉ होता है, गणेश को थैली वापस देना, ये विष्णु का एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. इट इज इम्पोज्ड एंड इंप्लाइड एंड अंडरस्टूड दैट ही शुड रिटर्न the bag of mangoes as it is with all the quantities of mangoes to Ganesh. Now this is a contract which is implied by law. Such implied contracts as implied by law are called as quasi contract. Are we okay? Next, e-commerce contract. ये इसको मैं समझाऊंगा नहीं. Contract into electronically between the parties is called as e-contract. Online shopping. I hope आप में से अब तक हर किसी ने कोई ना कोई चीज ऑनलाइन शॉप की होगी. जो ऑनलाइन शॉपिंग आपने की है, जहां पर दो पार्टीज के बीच में ऑनलाइन मोड से ट्रांजैक्शन होता है, जैसे अमेजोन पे कुछ खरीदो, फ्लिपकार्ट पे खरीदो, मिंत्रा पे खरीदो, ये हर चीज ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाई जाती है. अभी ओके? अभी ओके? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, हेंस इट इज कॉल्ड एज ई कॉन्ट्रैक्ट. अभी ओके? फाइनल पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. बहुत सिंपल है, 2 मिनट रुको, गिन के 5 मिनट लगाओ, गिन के 5 मिनट. सो डोंट मेक फेसेस. On the basis of performance, on the basis of performance, first executed contract. पहला पॉइंट क्या है? Executed contract. When the contract entered between two parties is been performed by both the parties, the obligation and the contract are performed by both the parties, it is called as executed contract. जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया गया है उसे हम कहते हैं executed contract. Ganesh promised to sell his bike to Vishnu. विष्णु प्रॉमिस टू पे ₹20,000 टू गणेश. तय प्रॉमिस और तय एग्रीमेंट के हिसाब से गणेश ने अपनी गाड़ी विष्णु के नाम कर दी और विष्णु ने 20,000 रुपए गणेश को दे दिए. क्या दोनों भी पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी ने कंप्लीट कर लिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट.
क्या कहते हैं हम? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस के हिसाब से गणेश ने गाड़ी दे दी, प्रॉमिस के हिसाब से विष्णु ने पैसे दे दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। Where performance under the contract or obligations under the contract are performed by both the parties, then it is called as executed contract. दूसरा executory, अब ये तो सिंपल है। executed यानी वो जो पूरा कर लिया है, अब जो पूरा नहीं किया वो क्या है? executory contract. executory contract दो तरह का होता है, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल वो होता है जहां पर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा किया है और दूसरा पार्टी अभी तक प्रॉमिस किया है, ऑब्लिगेशन पूरी नहीं किया, इसे हम कहते हैं यूनिलैटरल। इसे हम कहते हैं यूनिलैटरल। और बायलैटरल वो होता है जहां पर दोनों भी पार्टीज ने अभी सिर्फ एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, उसका जो ऑब्लिगेशन का परफॉर्मेंस है वो नहीं किया। लेट्स से पहला एग्जांपल देखो, गणेश हैज प्रॉमिस्ड टू सेल हिज बाइक टू विष्णु। विष्णु हैज पेड 20,000 टू गणेश। अब दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर ली है, लेकिन क्या गणेश ने अब तक अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जहां एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया दोनों पार्टी का, वो क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में से एक भी पार्टी ने अगर एग्जीक्यूशन नहीं किया तो वो एग्जीक्यूटर ही हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे अभी गणेश ने अपना पार्ट पूरा कर लिया, विष्णु ने अपना पार्ट पूरा कर लिया पैसे देकर, गणेश ने अभी तक प्रॉमिस किया है, अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा किया है, दूसरे पार्टी ने अभी ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझा कि नहीं समझा? अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल यानी जहां पर दोनों भी पार्टीज ने प्रॉमिस किया है लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑब्लिगेशन इज रिमेनिंग ऑन बोथ द पार्ट। गणेश हैज प्रॉमिस्ड टू सेल हिज बाइक, विष्णु हैज प्रॉमिस्ड टू पे 20,000। दोनों ने ऑब्लिगेशन पूरी की है क्या? नहीं। दोनों ने भी क्या किया है? प्रॉमिस किया है। ये बोल रहा है दूंगा, वो बोल रहा है बेचूंगा। बेच दी, पैसे दे दिए, एग्जीक्यूटेड। पैसे दे दिए, बेचूंगा, यूनिलैटरल। बेचूंगा, पैसे दे दूंगा, इट इज बायलैटरल। अभी ओके? अभी ओके? दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। Types of contract is over here. So what we have seen, the classification of contract can be done on the basis of validity or enforceability. The classification of contract can be done on the basis of formation, and the classification of contract can be done on the basis of performance of the contract. That's all for today. See you tomorrow. Thank you so much.